Hi friends, welcome to my channel. It's afternoon at around 11:30 or so. Well, I made this kulcha kind of a thing. ये मैंने right now can't hear my voice itself. I hope you like my plain look and this is my hair post spa. कैसा लग रहा है? Check out my haircut and my spa. I complained to that V people that this guy has misled me with the postpaid. So they said, no, he has given you wrong information and we will transfer your this. I said, I suffered so much because of that. The mental anguish and he giving me all kind of wrong information just because he wants to complete his target. Such a cunning fox. I said, I let him act the way it is because I wanted to keep my number active. And I said I would officially will also complain about this person because he has literally misled me and he's just upgrading my plan for nothing. And my phones are 4G. Why will I use your 5G SIM? And how come your plans are helping me? They're supposed to give me a call. They have not. I have received 2 calls from VI. Then she said, I'll connect you to the supervisor. I said, because I was speaking back to back with them, I said, call me back later after 4 o'clock. I said, ma'am, we will call you after 4 o'clock at your convenient timing. I said, call me. And I did not receive their call yesterday. Maybe today they will call me up. मैंने बोला तुझे अपना टारगेट कर तो मुझे बलि चढ़ा दिया. दिस इज टेस्टिंग सो ऑसम. इसके मैंने 2 आइटम्स बनाए थे. मतलब बहुत सारा आटा, मेरे पास बहुत मैदा, 3 पैकेट्स ऑफ मैदा पड़ा है, आधा किलो आधा किलो आधा किलो. तो आई सेड वाई डोंट आई ट्राई समथिंग्स. वैसे मैं बिस्किट तो खाती हूँ. कल मैंने पूरा दिन सिर्फ कुकीज़ खाए एंड आई हैड हर्बल टी. मेरे रिश्तेदार आ गए अनअनाउंस जस्ट टू चेक द हाउस. मैंने क्या बोला, क्योंकि माई फोटोग्राफ्स एंड ऑल आर सो ग्लैमरस ऑन व्हाट्सएप स्टेटस. These people are actually, they are from Bombay only, but they shifted down south. When I went to for my vacation in the south, I did not visit these people because they are from my father's side. And I told her very clearly, see, I had an invitation from my mother's side and I went for my Masi's place. So my everything was monitored. I just cannot go here and there, and all the places are far off and I don't know those places. I said I have not visited any of my father's side except for one old auntie who is 91 years old or something, 92 years old or something. That too because my cousins were living in that same area, and my uncle's side also his sister's daughter was also staying there. So that's the reason we had gone over there. So I explained to her, I said both the sides of relatives are completely useless. They just come to see the tamasha. And I was giving a bhashan in English. Now these people are crorepati's, okay? They have an asset here. They have assets in Bangalore. Their kids are settled abroad, Canada, Australia. And they were in UAE for like around, I don't know, 40 years or so. 38 years or something they were there. शक्ल से एकदम गरीब, लाचार, बीमार लगते हैं. And that lady तो looks like as though she's one. These are top shot people, but इनकी शक्लें और हरकतें देखनी चाहिए. मेरे लिए कुकीज़ लेके आए थे. मेंटल. मैंने बोला हेल्प नाम की चीज़ तो मिलती नहीं है, लेकिन लोगों का मुंह से बड़ा खुलता है. लोग बहुत टूर भी मारते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन शक्ल से इतने लाचार, गरीब और सीधा मुंह पे बोला उनके. बैठने के लिए भी जगह नहीं है, सर पे बैठेंगे क्या? आई सेड एटलीस्ट गिव मी, वी डोंट हैव योर नंबर. आई सेड यू कुड हैव आस्क्ड फ्रॉम समबडी हु हैड इट, राइट? 1000 बार ये जताएंगे. I should never like visiting their house earlier also when they were there abroad. कभी कभी मैंने I used to visit just for the formality sake. जब बोर होता था
बट मैंने इनकी हरकतें क्लोजली देखी हुई है, तो आई नॉट वेरी कीन अबाउट दिस पीपल. इंग्लिश में मैंने जो झाड़ा एक्चुअली किसी उसी के भाई की बेटी की शादी थी. आई सेड ये साउथ में से आते हैं, द लेडी दे बोथ एवरी सिंगल ओकेजन फंक्शन के लिए होते हैं. तो मैंने बोला इनका 2 बेडरूम का यहाँ पे बुद्धईसर बोरोवली में है, तो यहीं पे रह सकते हैं ना. आए दिन यहाँ पे आएंगे, आए दिन बॉम्बे आ जाएंगे. दे विल वेस्ट देयर मनी, दे विल वेस्ट देयर टाइम, बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड प्लेंटी ऑफ मनी. और वहाँ पर भी बहुत बड़ा बंगलो है उनका डाउन साउथ में. बच्चे तो है नहीं यहाँ पर, तो यू कैन स्टे हियर, क्योंकि इसका पूरा खानदान, द लेडीज साइड का खानदान पूरा बोरोवली में है. क्या मीनिंग बनता है तुम लोग आए दिन यहाँ टपकते रहते हो? बिकॉज दैट लेडी इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल डाउन साउथ, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम बॉम्बे, राइट. इतनी घमंडी है, बाप रे. हस्बैंड एंड वाइफ, आई कांट टेल यू. दो औरत इज लाइक दैट काजोल कैटेगरी, लाउड एंड प्राउड. फिर उसकी बेटी भी वैसी है, लाउड एंड प्राउड. झाड़ दिया मैंने. फिर इसके मुंह से निकला, मैं शादी में आई थी, सर मुझे तो इनविटेशन नहीं मिला. वाई? बिकॉज आई एम अ पुअर रिलेटिव. आई सेड देयर इज अनदर अपकमिंग इवेंट. She said those people have also come, her parents. I said they don't land up like this. कुछ तो होगा बीच में. Have you come for some function? I told her, नहीं, we came just like that. I said just like that. फिर मुझसे second time निकला, नहीं, I came for my brothers. I said मुझे तो नहीं मिला इन्विटेशन. कब थी शादी? कल थी, सैटरडे को. और संडे को शक्ल दिखाने यहाँ आए, क्योंकि ये किसी रिलेटिव के यहाँ पे रह रहे हैं नियर द चर्च. मैंने इतने स्टूपिड लोग नहीं देखे. अगर तुम्हें बॉम्बे में ही पैर रहना, आए दिन आना है, तो यहीं पर रह लो ना. वो बड़े से बंगलों में क्या करोगे तुम दोनों पागल. और ये आदमी को हार्ट अटैक हुआ था. वेरी वेरी प्राउड अबाउट हिज हेल्थ एंड हिज यूथ. दे आर इन देयर 70s, अर्ली 70s. द लेडी मस्ट बी 69-70 एंड द मैन मस्ट बी अराउंड 70. वेरी प्राउड अबाउट हिज इंग्लिश, वेरी प्राउड अबाउट हिज हेल्थ. Driving long hours. Now I asked him, are you still driving? Yeah, I am still driving. I'm still fit and fine. So proud about their health. Even my mother used to be very proud about her health, proud about her beauty, proud about her youth. मुझसे मतलब I am her ये, बट उसको इतना घमंड था अपने लुक्स के ऊपर, अपने फिगर के ऊपर, अपने स्टाइल के ऊपर. सीरियसली, किस बात का घमंड? आई टोल्ड हर इतना घमंड अच्छा नहीं है. कैंगरू की तरह हॉप स्किप करना, स्टूपिड एक्टिविटीज़ करना, नारियल छीनना, 10 बार नीचे जाना, और बेवकूफ़ों की तरह घंटों फ़ोन पे बातें करना. फिर ये न्यूज़ देखना घंटों, 3-3, 4-4 घंटे. फिर ये रियलिटी टीवी देखना. फिर ये प्रेयर करते वक्त ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के प्रेयर करना या गाने गाना. वाहियात हरकतें करते हैं, बट बाहर इमेज इतनी परफेक्ट. वी आर परफेक्ट पीपल. याद है आई वॉज डूइंग दैट वीडियो. मैंने बोला एटलीस्ट नोटिफाई मी ना, माई हाउस इज़ इन शैम्बल्स. तमाशा देखने आए थे शायद से. मैंने बोला मुझे किसी से अभी कोई लेना देना नहीं है. आई हैव बिकम अ सैवेज बीस्ट. उनके मुंह पे बोला. आई सेड नाउ आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. मैंने इसके अंदर क्या डाला कुलचा के अंदर पता है? दही में मला मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून, 4 मिर्ची का धनिया, हैंडफुल ऑफ धनिया, कोरिएंडर, कड़ी पत्ता, तिल, अजवाइन, जीरा, सौंफ. फिर घिस के मैंने अदरक डाला, और घिस के मैंने अनियन भी डाला. तो इट्स अनियन कुलचा इट इज़ अनियन कुलचा. एंड फिर क्या हुआ पता है? और थोड़ा सा हींग डाला, ऑफकोर्स सॉल्ट. अभी ये सब डाल के मैंने अच्छी तरह से मला, लेकिन वो जो मैदा का बेस था ना, वो बहुत चिपचिपा हो गया. तो मैंने उसके 2 पोर्शंस बनाए. एक में रागी मिक्स किया, एक में चने का आटा मिक्स किया. मतलब 2 पोर्शन. एक फर्स्ट मैंने रागी का बनाया, वो भी फर्स्ट क्लास बना. द सेकेंड वन मैंने ये बनाया, उसके 7 बन गए, इसके 8 बन गए छोटे ये साइज़ के कुलचे. और मेरे नए तवे पे बनाया मैंने, आयरन तवा विच आई गॉट.
तो मेरा ये पहला रसोई है विद माय तवा. आई एम हैप्पी विद इट. आयन का है ना. डोसे बनाने हैं मुझे. ये कुकीज़ खा के ना मेरा पूरा गला पूरा आई डिडंट गो आउट टुडे. मन नहीं कर रहा था. कल मैंने सब्ज़ी बना के रख ली, इन लोग आ गए, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया, तो मैंने कुछ नहीं बनाया कल, सिर्फ ये कुकीज़ खाए. और मैंने बोला रखना क्यों है उस कुकीज़ को, वो सॉफ्ट और वो स्पॉन्जी हो जाते हैं. तो सिर्फ 4 बचे हैं. मे बी दे मस्ट बी अराउंड 20. आई मस्ट हैव हैड 15 कुकीज़ थ्रू आउट द डे. मतलब सुबह से लेके शाम तक खाया. और 6-7 कप्स ऑफ हर्बल टी आई हैड. आराम आराम से मेरा मूड ही ऑफ हो गया. एक तो इनकी शक्ल देख के मेरा मूड ऑफ हो गया. दैट लेडी इज़ नो लेस. क्या घमंड है उसको, बाप रे. मैं इससे बात नहीं करती थी. ये हमेशा बॉम्बे आती है, आए दिन ये आते हैं और ये अंधेरी में रहते हैं. यहाँ पे यहीं पे रहते हैं मेरे घर के पास, नियर द चर्च. उनके किसी रिलेटिव के यहाँ पर, उनके पति के साइड की कोई कज़न के घर पे. हाँ, उसका बेटे का ससुराल भी है ना यहाँ पर. सो एवरीबडी इज़ कनेक्टेड विद एवरीबडी. आई टोल्ड यू दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल. एवरीबडी knows everybody. I'm having lemongrass from my this mint leaves. ये देखो. Sorry इन today I'm using this cup क्योंकि इसमें मेरा लेमन और सारी चीज़ें थी, तो लास्ट टाइम I'm using this. And let me tell you about the illness part of it. वो illness how do I say, we don't get ill by eating in broken vessels. We get ill because of our own circumstances. पहले मैं प्रॉपर प्लेट्स एंड कप्स में खाना खाती थी, फिर भी बीमारी थी. तो नाउअडेज ना मैं सुपरस्टिशन को 2 बार सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सुपरस्टिशियस हूँ काफ़ी हद तक. और मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं यार. हेयर कट भी सूट कर रहा है. मैंने बोला मेरे व्यूअर्स को मैं दिखाऊँ यार, मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं ना. आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट दीज पीपल. दीज रिलेटिव्स आर यूजलेस. मैंने बोला था ना सरप्राइज विजिट देने आएंगे, बिकॉज माई ग्रीन चूड़ी इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट, राइट. सो दे जस्ट केम डाउन टू सी इफ समबडी इज देयर और नॉट. एंड वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो ड्रॉप्ड इन, बट आई हैड ऑलवेज टोल्ड हिम कि मुझे कॉल करके ऐसे विजिट करना. तो ही ऑल्सो केम इन आफ्टर 2 months और सो विजिट करने के लिए. मैंने बोला सॉरी आई एम नॉट सेंडिंग ऑल दिस न्यू ईयर विशेज़ एंड ऑल दैट. और कॉल किया होगा तुमने 1-8 बार, मैंने उठाया नहीं होगा बिकॉज मेरा मूड नहीं करता है बात करने के लिए. सो दे ऑल वेरी क्यूरियस कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में. इस तरह घर जवाई किसी आदमी को मैंने मिस्ट्री मैन को छुपा के रखा है कि नहीं. तो पीपल आर क्यूरियस. ये ग्रीन चूड़ियों ने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है. सिंदूर लगा के गई, एक ने तो पूरी बिल्डिंग में फैला दिया होगा, वो फीमेल ने जो मुझे मिली है, कि शांति सिंदूर पहन रही थी और मैंने देखा. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. सी आई डिडंट गो टू द पॉन्ड पार्क, क्योंकि मैं आए दिन जाती हूँ ना, तो इफ़ आई विल बी इन द फोकस, तो मुझे थोड़ा सा एक दो दिन का ब्रेक बीच बीच में रखना अच्छा लगता है. इट्स नॉट दैट आई गॉट अप लेट, इट्स जस्ट मन ही नहीं कर रहा था मेरा. एक तो इन लोग ने कल आके मेरा मूड ऑफ किया, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया मेरा. अगर तुम लोग इतने ही करोड़पति हो और तुम मेरे बारे में इतना ही सोचते हो, एक डोनेशन दे दो मुझे. इतना ही तरस खा रहे हो तो, इतना ही सिंपैथी आ रही है तो, इतने पैसे से सड़ रहे. इनफैक्ट दैट मैन हैड a job like where every expense of that family was covered. Housing, petrol, telephone, every single thing. और वो कितने सालों से था वहाँ पर.
Not that he's some MBA or something. Just 10th standard a pass or fail maybe. But English ऐसे बातें करेगा जैसे he's some English professor. और नॉट ओनली दैट, सारी चीज़ों का अपडेट है, चाहे मूवीज़ हो चाहे ये है वो है. ट्राई टू बिहेव यंग एंड फंकी. और बेटा बाप से भी बूढ़ा जैसा बिहेव करता है. ये करोड़पति ऐसे बोरिंग और स्टूपिड रहते हैं, बट पैसे चिक्कार है इनके पास. और हरकतें, इनके कपड़े और इनकी शक्ल देखो भाई, तुमसे तो चौल वाले अच्छे दिखेंगे. एटलीस्ट फ्रेश तो लगेंगे, अच्छे तो लगेंगे. ये तो मरे हुए मुर्दे जैसे कोल्ड स्टोरेज में वो मटन रखते हैं ना, मटन और चिकन को, डेड मीट, दैट्स हाउ दे आर. आई यूज्ड टू टेल माई मॉम दिस, तेरे साथ में ना रहते जिंदा लाश ही हूँ, ठंडी लाश जिसके अंदर कोई जान नहीं है. इसलिए मुझे सेंस नाम की चीज़ नहीं था, वरना मेरे एक्स जैसे खड़ूस, कंजूस, बोरिंग, ड्राई, टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव बहुत गेम्स खेलता है, माइंड गेम्स बहुत खेलता है. द वे ही स्पीक्स हिज लैंग्वेज, स्टेटस, मतलब वो फेक हम्बल, फेक नाइस, स्टेटस कॉन्शियस. मुझे नहीं समझ में आता था ये. आई वॉज लाइक अ चाइल्ड लाइक. मुझे नहीं ये सारी समझ. आई वॉज सो कम्प्लीटली बिसॉटेड बाई हिम. नॉट दैट ही इज सम ग्रेट. मैं उसके मुंह पे भी बोलती, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है लुक्स वाइज, जस्ट एक पर्सनैलिटी है. बिकॉज ऑफ दैट डेजिग्नेशन एंड स्टेटस वाइज वो आ जाता है ना वो वैसे. बाकी ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है. देन ही यूज्ड टू, आई रिमेंबर हिम ब्रैगिंग, women are crazy behind me. I said yeah, because he behaves that unavailable, touch me not mysterious kind of a person. I am there, I am so charming, but you cannot, achieve me. You'll have to work hard to get through me kind of a thing. Silent lady type, silent speak. मतलब बातें करता है ऐसे, कभी इतनी ज़्यादा बातें करेगा और कभी कभी ऐसे करेगा जैसे वो तुम्हें पहचानता भी नहीं है. He'll like pretend as though you don't exist. अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, who's so close to him, तो वो बाकी के साथ क्या करता होगा भगवान जाने. कैसे गेम्स खेलता होगा अपने स्टाफ के साथ. और आई कैन जस्ट इमेजिन मेरे साथ, जिसके साथ वो इतना ज़्यादा क्लोज है, वो मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर सकता, तो बाकी लोगों के साथ वो कैसे कर सकता है. इस साल से मैंने डिसाइड, यू वोंट बिलीव, टू ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मेरी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है. आई थिंक बाजू वाले की पनवती वापस ना आ जाए. दे आर डूइंग रिपेयरिंग. इफ़ यू कैन हियर द नॉइज इन द बैकग्राउंड, वो 4th फ्लोर का वो बाजू वाला बर्न फ्लैट है. वो जॉइंट फैमिली वहाँ का एक भाई आया, वो एक आके घुस के रिपेयर करके रहना चाहता है, मतलब हड़प करना चाहता है फ्लैट. इट्स अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एक्चुअली. दैट ओल्ड मैन इज़ नॉट रेडी टू ट्रांसफर द पेपर्स एंड ही हैज़ मैनी चिल्ड्रन. यहाँ पे 2 लोग घुस के बैठे हुए हैं. कैसे कैसे लोग हैं पब्लिक. मैंने बोला ये पनवती वापस नहीं आनी चाहिए. बापरे, एक बार तो फ्लैट को जला लिया, दूसरी बार आएंगे तो पूरी बिल्डिंग को ही जला देंगे लगता है. बिकॉज दैट लेडी इज इनटू विचक्राफ्ट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. दैट फीमेल, टैप पे बहुत घमंड है उसको. इतनी सुंदर दिखती हूँ. मैंने बोला यार रॉटन. मैं उसको देख के भी अनदेखा करती हूँ. मैंने बोला बेहतर की पनवती दिख गई मुझे. एटीट्यूड कम नहीं है. जॉइंट फैमिली में रहकर भी ऐसे कर रहे हैं. पूरा फ्लैट, पूरी बिल्डिंग को खरीद लिया है. बेशरम औरत. हाउ मच शी फाइट्स. भाई मैंने अपनी न्यू ईयर में डिसाइड किया. आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, जब मेरा ब्रेकअप हो गया था, ऑफिशियल ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप बहुत पहले ही से चल ही रहा था,
ब्रेकअप ही था, बट ऑफिशियली जुलाई में हो गया व्हेन ही ओपनड हिज माउथ एंड ही टोल्ड मी कि देयर इज नथिंग बिटवीन अस एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला. भाषण दिया मुझे उसने. दैट वाज जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी नहीं, ये 4 महीने आई वॉज गोइंग क्रेजी. मैं सोचती थी कहीं मैं उसका चेहरा देखूँ, कहीं उसकी गाड़ी देखूँ. आई हैड फॉरगॉटन हिज कार ऑल्सो. आई लिटरली फॉरगॉट हिज कार कि दिखता कैसा है. लेकिन मुझे 1 दिसंबर को दिखा वो विथ हिज कार बिकॉज ही पार्क समवेयर एल्स. तो आई यूज टू उसके एक ग्लिम्स के लिए तरसती थी कि कैसा कैसा है वो. कभी कभी दूर खड़े रहकर मुझे देखता था. तो ही वॉज बेटिंग मी. स्विच एंड बेट बोलते हैं ना, मतलब सी इवन दो आई एम ब्रेकिंग आई एम लुकिंग एट यू लाइक अ साइलेंट लवर फ्रॉम फार अवे. लेकिन वो मुझे देख रहा था कि मैं उसको देख रही कि नहीं. जबकि मैं लाइक ही यूज्ड टू काइंड ऑफ, आई वोंट से हाइड, बट यू स्टैंड वेरी फार एंड स्टेयर एट मी कि मैं किससे बातें कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या बैठी हुई हूँ क्या कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्च कंपाउंड थिंग. एंड आई यूज टू रियली वंडर. एंड एक बार तो मैंने उसको खुलेआम देखा कि स्टैंडिंग, आई थिंक हिज कार वॉज पार्क, तो आई डोंट नो वेदर ही वाज गोइंग विद हिज रिलेटिव्स फॉर सम डिनर, आई हैव नो आइडिया. बट ही वाज स्टैंडिंग देयर एंड चिट चैटिंग सीमिंगली विद अनदर पर्सन, बट ही वाज स्टेयरिंग इनटू मी फार अवे. रात का टाइम, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट्स थे नहीं थे टाइप्स ना, डार्क रहता था थोड़ा सा. तो मैं उसके एक एक झलक के लिए तरसती थी. और कहीं ना कहीं मुझे महीने में एक बार तो वो मुझे दिखाई ही देता था कैसे ना कैसे करके. या तो वो उसके भाई इक्वली रॉटन है. मैंने उसके मुंह पे बोला, यू एंड योर ब्रदर आर इक्वली हरामी पीपल एंड यू आर एन अगली डकलिंग. तुम्हारे अंदर ऐसा कोई. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो मुझे सिर्फ होप्स देता था कि नहीं हमारे बीच में कुछ ना कुछ इवेंचुअली कुछ ना कुछ होगा. सो ही यूज्ड टू कीप स्टेयरिंग एट मी, और ही वुड फ्लर्ट विद अदर फीमेल्स, और ही वुड स्टैंड इन सच अ वे एंड टॉक टू अदर पीपल बट लुक एट मी इफ आई एम सिटिंग ऑन द बेंच. संडे की इवनिंग में जाती थी मैं. अभी मैंने पूरा स्टॉप कर दिया. सिंस नवंबर से मैंने स्टॉप कर दिया था वो इवनिंग में जाने का ऑन संडेज़ टू द चर्च कंपाउंड. तो अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती. अगर मैं जाती हूँ तो 5 मिनट के लिए जाती हूँ, वो भी रैंडम टाइमिंग्स पे. मे बी 7:30 8 o'clock. आई गो टू द प्रेयर रूम, जस्ट विजिट मार के वापस आती हूँ. या आई सिट ऑन माई फेवरेट बेंच फॉर 2 minutes, वापस आती हूँ. पहले तो ना आई यूज्ड टू मेक वीडियोज़ ओवर देयर. आई यूज्ड टू सिट इन द इवनिंग्स. मैं बहुत डिप्रेस, सेमी डिप्रेस थी. नॉट रियली डिप्रेस्ड बट सेमी सैड. ये मैं अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आफ्टर द ब्रेकअप ऑल्सो आई यूज टू लॉन्ग टू सी हिम, लॉन्ग टू हियर हिज वॉइस. की तरसती थी कान में उसकी आवाज़ आए या उसकी शक्ल में थोड़ा सा भी देखूँ. तो आई रिमेंबर व्हेन ही हैड आफ्टर द ब्रेकअप उसने दाढ़ी बढ़ा के रखी थी. ही वॉज नॉट शेविंग. उसने बाल भी ऐसे पागल की तरह कुछ तो ऐसे हेयर स्टाइल भी किया, अजीब सी थी. और उसको वो पता है कि मैं उसको शैबी हालत में बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती हूँ. तो उसने दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई थी. दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हिम लाइक. और वो ऐसे दिखा रहा था कि उसको भी इफेक्ट हुआ है बट ही इज़ नॉट अफेक्टेड एंड ही इज़ फ्लर्टिंग एंड ही इज़ इंजॉइंग विद अदर पीपल एंड लाफिंग जोकिंग टॉकिंग. मैंने बोला ना उसका भाई भी नज़र रख रहा था कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है कि नहीं. ऐसे से पागलपन की हरकतें करता था वो ताकि मुझे अफेक्ट हो जाए. पहले पहले मुझे थोड़ा बहुत अफेक्ट होता था, थोड़ा बहुत. फिर बाद में मैंने केयर करना ही छोड़. एंड लुक एट हिज ऑडेसिटी. उसने मुझे 5th को ब्रेकअप किया. आई सॉ हिज फेस ऑन संडे समवेयर इन जुलाई, द नेक्स्ट वीक. पता उसी वीक में देखा. नी सेइंग हाई टू मी लाइक दिस, जिससे कुछ हुआ ही नहीं. तू मुझे बोल रहा है, मुझे 10 बातें सुना रहा है, क्या क्या लांछन तूने मुझ पे लगाए. एंड देन दैट वेरी वीक ही इज़ डूइंग लाइक दिस. और उसका भाई भी खड़ा है ना, उसके सामने ऐसे नाटक नौटंकी कर रहा है बाकी लोगों के सामने. मैंने उसको देख के अनदेखा किया. आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच. आई वॉज टॉकिंग टू अनदर गाय हू वॉज इक्वली हॉट.
वो जस्ट बैठ के बातें कर रहा था, रैंडमली मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, बिकॉज ही वॉज अ हिंदू गाय. तो ही थॉट दैट आई वॉज डेटिंग अ न्यू गाय. एक ही हफ्ते के अंदर विल आई डेट अ न्यू गाय एंड सिट ऑन द चर्च बेंच? एम आई सम नटकेस? ये जो लेडी रिलेटिव की बात कर रही थी ना, ये कितना योगा करती थी, ये वहाँ के पार्क में ना कितने वॉक्स लेती थी, ये और इसका पति कितना वॉक्स लेते, लेकिन इसकी कोई वेट लॉस नहीं हुई. शी वॉज लुकिंग अगली एंड अगली एंड अगली. फैट. हस्बैंड इज थिंकिंग ही इज़ 25 years old और वाइफ इज़, इनकी लव मैरिज है, वाइफ इज़ लुकिंग फैट एंड डार्क एंड अगली. सीरियसली. एक पैसे का वेट लॉस नहीं हुआ. शी वॉज वेरी प्राउड अबाउट हर बेकिंग स्किल्स. एक बार इसने कुछ बनाना केक बनाया था, आई एम टॉकिंग अब्रॉड में, कितना रबिश था, स्टिकी एंड रबिश. तो इतना बोस्ट करने की क्या बात है, मैं आई एम बेकिंग एंड ऑल दैट. मैंने बोला एक सिंपल वो बनाना केक भी इतना नॉनसेंस वाली बन गई थी. आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माई मॉम कि डोंट बोस्ट, कभी कभी अच्छा बनता है. मेरा तो ये है कि अच्छा बनता है तो बोलूँगी अच्छा बन गया, नहीं बनया तो वो भी बोलूँगी अच्छा नहीं बना है. मिस्टेक्स होते रहते हैं, तो आई टू कीप ब्रैगिंग एंड बोस्टिंग. मेरे भी हाथ में मिस्टेक्स होते हैं. लुक एट माई कुलची का कलर. ये बिकॉज चने का आटे का बना है ना, इसलिए येलो है, नॉट बिकॉज आई पुट हल्दी. बहुत टेस्टी बना है. रागी का भी टेस्टी था. उसको ना बहुत तेल खपता है ये आयरन के, इसमें तेल लगा के करना पड़ता है. और ये ड्राई आटे में बनाना पड़ता है ना, मतलब मलते ये करते वक्त, रोल करते वक्त. तो यू कांट से वी आर ईटिंग चपातीज विदाउट ऑयल, देन यू मस्ट बी अ नट केस. कैसे बनेगी वो चपाती सूखी सूखी रूखी? तेल और घी तो लगता ही है. ये कुकीज़ खा के मेरा गला ख़राब हो गया है. कान सुनाई नहीं दे रहा है मुझे. ये प्रॉपर्टी के लिए घमासान लड़ाई होगी, रियली, सीरियसली. दिस बिच यूज्ड टू फाइट विद अनदर फीमेल, दूसरे भाई की बीवी के साथ, जेठानी के साथ. कॉन्स्टेंटली इनके रोज़ आए दिन झगड़े. आई रिमेंबर 2016-17, then I think in 18 they left, or 2017, every single day there is a fight, every single day in the kitchen, when they are sharing the kitchen. बहनचोद औरतें दोनों गई गुजरी पागल औरतें हैं. तो that elder, that Jate left and then he came back during COVID, क्योंकि ये वाला बंदा पूरा हड़प करने वाला था फ्लैट. जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होता है, तुम सुकून से रह ही नहीं पाते हो. एटलीस्ट इसका वो दूसरी तो भैयाणी है दूसरे ही विंग में, बातें बड़ी बड़ी. जॉइंट फैमिली ना, 1 रूम किचन, वो 1 बेडरूम हॉल में जॉइंट फैमिली, दोनों के 2 बच्चे. फिर वो सास भी है. सास नीचे बैठ के यहाँ पे कितनी गॉसिप करती है. मैंने बोला तेरे घर का पहले देख ले, जेठानी देवरानी कैसे मैनेज कर रहे हैं. उनके बीच में भी होता है. वो देवरानी तो हारी हुई ऐसी लगती है, लाइक शील ड्रॉप डेड एनी मोमेंट. हमेशा बीमारी रहती है. मैंने बोला खाना बनाती है या बनाना नहीं चाहती है या खाना खाती नहीं है, पता नहीं है क्या सीन क्या है. So this pond park में they laugh पागल की तरह and do a lot of breathing exercise, which is not good. You should not do breathing ज़बरदस्ती. It should be natural flow. जो भी तुम्हारे लाइफ में होता है वो नेचुरली होना चाहिए. बॉडी इज़ इन अ नेचुरल रिदम. ज़बरदस्ती भाग भाग के जाना. पहले मैं क्या करती थी पता है, सुबह मुझे जब वॉक पे जाना है ना, मैं भाग भाग के कपड़े नहाना धोना
पहले बाथरूम धोना, पहले पूरा ये धोना, फिर नहाना, फिर कपड़े अच्छे खासे वो कुर्ता और ये पहनना, परफ्यूम, भाग दौड़ के जाना, कोई मीनिंग नहीं बनता है इसका. And especially in the winter you should avoid running like a पागल because the body is little frozen, तो उसको टाइम लगता है हीट होने के लिए. आज मैं सुस्ता रही थी बेड पे, नॉट बिकॉज आई वॉज लेजी, आई जस्ट वॉज नॉट वॉन्टिंग टू डू एनी थिंग. मैं ग्लैमरस लगती हूँ, रिच लगती हूँ, तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी एसोसिएटेड विद मी. इट्स अ फैक्ट. मैं मेहनत करती हूँ मेरे पर, मुझे ऐसे ही नहीं मिला. इफ़ यू आर डूइंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो मतलब मेरी मेहनत भी होती है उसके अंदर. आई एम अट्रैक्टिव बिकॉज आई एम पुटिंग, स्टाइलिंग करने के लिए भी मुझे एफर्ट लगता है. आई डोंट नो, आई एम yawning from many days. बाकी वो लोग ना थोड़े फुल्ली क्रेजी है with their breathing exercises and dancing, jumping like a crazy. इसलिए when they said membership, मैं तो बाप रे, no ways would I join them. There could be some cult, it could be some kind of a hidden cult. They're not that as innocent as they portray. They must be doing some energy harvesting and all that. कभी कभी अच्छा ही लगता है कि ये रिलेटिव्स इनवाइट नहीं करते, तो इनकी सड़ी हुई शक्लें. आई सेड 12th को भी है. शी सेड वी आर नॉट देयर फॉर दैट फंक्शन. तो आई सेड सी, आई डोंट माइंड, इट्स नॉट अबाउट गोइंग देयर, बट द सार्केस्टिक रिमार्क्स एंड दोज फेसेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग एनी ऑफ देम ऑन देयर फेस. मैंने बोला अच्छा हुआ इन्वाइट नहीं किया, तो ना जाने का एक बहाना भी रहता है. तो ये है, इनाके हैज़ फ्लडेड माई, क्या बोलते हैं ना, my comment section. Also says there's a connection between mental illness and negative energy of other dimension. Even doctors know it, but they will never share it with the patient. Just ask them to pop pills and injection all in the name of science. They don't have answers for many things. Some need soul cleansing, God's guidance along with the scientific. I'll tell you mental illness क्या होता है ना. I'll tell you. I was down south, okay. Prime example देती हूँ. They had a super beautiful bungalow. ये bungalows plot में होते near the airport down south. Most prime location. बट उसकी वाइफ है, आई थिंक शी इज़ अ स्किज़ोफ्रेनिक. दिस मैन लुक्स हैंडसम, डायनामिक, वेल टू डू, और क्या माँ बेटे एकदम मतलब टीम है. एंड दिस फीमेल इज़ लुकिंग अगलियर. मे बी शी वॉज नॉट दैट अगली, शी वॉज नॉट दैट अगली, बट नाउ शी इज़ लुकिंग अगलियर एंड अगलियर डे बाय डे. एंड दे हैव गॉट 2 children. Okay, the son is very sickly, but the daughter is very pretty and beautiful. She is just 9 years old. अब मैं इनके घर पे गई थी बिकॉज दे आर द रिलेटिव्स ऑफ माई अंकल साइड. एंड एक इन्विटेशन भी मिला था फ्रॉम हिम, फ्रॉम द पर्सन, बिकॉज ये जब शादी में आए थे तो दे नो द
दे आर सब इंटर रिलेटेड पीपल। तो उन्होंने बोला था हाँ शांति को लेके आइए हमारे घर पे डिनर पे और समथिंग लाइक दैट, एक बार आइए हमारे घर पे स्टे ओवर करने के लिए, दैट्स। तो हम लोग किसी कज़न के घर पे टाउन साइड में गए थे, तो टाउन साइड में वहाँ पे गए थे मेरे कज़न। तो काफ़ी सारा उस दिन हम लोग ने टूर मार के उनके घर पे शाम को पहुँचे थे। ये लाइव एग्जाम्पल है। सो आई दे वर इग्नोरिंग हर कम्प्लीटली. So I said they were sitting and having drinks. तो I said then they bought breezer, एक ब्रीज़र था शायद से, या वोडका था या कोल्ड ड्रिंक था, कुछ तो था. तो I made her sit next to me and the husband was staring angrily at her and so is the mother-in-law. But मेरा mother-in-law के उनके mother-in-law के साथ में चिट चैट करी थी and take clicking photographs with them. घर भी बहुत ही creative, बहुत ही fantastic था. Because this person was also from, this man was working in Gulf for many years, और वो वैसे भी खानदानी भी वेल टू डू. आई थिंक इनके फादर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, तो दे आर वेल टू डू पीपल, खानदानी पैसे वाले लोग हैं ये. और वो रईस लोगों में वो जो होता है ना फेयर और गोरे चिट्ठे, वैसे टाइप. नाउ आई मेड अ सिट नेक्स्ट टू मी एंड आई वाज चैटिंग विद हर. वो एक शैबी कपड़ों में थी. फर्स्ट आई थॉट शी वॉज अ नौकरानी. आई डिडंट नो दैट ये इनकी वाइफ है. पता चला कि इनकी वाइफ. तो ऐसे आई मेड अ सिट नेक्स्ट टू मी, और मैंने मेरे लिए थोड़ा सा ड्रिंक बनाया उसके लिए. सिंग नॉट मोर देन द हस्बैंड इज लुकिंग लाइक दिस एंड सेड नॉट मोर देन वन, नॉट अनदर वन. So he's constantly staring at her and giving her glares. The mother-in-law is constantly looking at her. Now I don't know whether she had sporadic episodes or she has those episodes. I don't know what it is. काफ़ी टाइम पे मायके भी जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, ऐसा कुछ सीन कुछ अजीब सा था, अजीब सा. एंड दिस गाय हैज़ मेड हिज चिल्ड्रन अंडर हिज कंट्रोल, द ग्रैंड मदर एंड द फादर. सो वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी थी. कि मैंने उसको क्या पूछा पता है, मैंने इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज ब्रशिंग माय टीथ, सो ही कीप्स मॉनिटरिंग वेदर शी इज टॉकिंग टू समबडी, इज शी ओके, व्हाट इज शी स्पीकिंग. सो ही वाज कॉन्स्टेंटली, उसकी नज़र हमारे पे थी. तो आई जस्ट आस्क्ड हर, आई सेड I think you're one of the luckiest women in the world. Your husband is so handsome, so successful. You have a mother-in-law who handles all the household work. You have pretty children. I said, you have a beautiful daughter. They had an Alaskan Malamute in their house. Huh? I say, everything you have. I said, why are you sad? She had no answer to that. तो ऐसा नहीं है कि people with picture perfect life have perfect lives. I'm giving a live example. हाँ, ये तो लाइव है. और डाउन साउथ में तुम ऐसे ही दिखते हो कि तुम इतने, इनके घर बड़े बड़े, इतने लैविश इनके घर होते हैं, ये इतना गोल्ड पहनते हैं, इतने इनके लेटेस्ट कार्स होते हैं. ये बॉम्बे तो भिखारी जैसा फीलिंग आ जाता है व्हेन यू कम बैक टू बॉम्बे. यू शुड सी डाउन साउथ. उनका खाना कितना लैविश है. जैसे उसको पता हाँ, उसका हैप्पी बर्थडे था, उसके हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए द सन एंड द फादर हैड द सेम डेट ऑफ हैप्पी बर्थडे. सो वी हैड गॉन टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे. अभी याद आ गया. तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर पे गए. तो ही सेड आई एम नॉट ईटिंग एनी केक, आई एम नॉट कटिंग एनी केक बिकॉज माई सन हैज़ एलर्जी. आई सेड एटलीस्ट वो बच्चे का मन तो कर रहा है ना केक काटने के लिए, एटलीस्ट फॉर हिज सेक वी कैन कट द केक. ही सेइंग नथिंग डूइंग, ही विल नॉट ईट अ सिंगल पीस ऑफ केक और एनी चॉकलेट्स और एनीथिंग. Like everything was military order in his house, like, you know. Though he is very charming, talkingly very charming, seemingly charming and friendly with other people, घर के अंदर he had a different attitude altogether. I said, don't do such a thing. वो बच्चा तरसता होगा केक काटने. Maybe not he is eating, but let us do that. नहीं, no means no. No means no. Then he said, which ice cream will you have? I said, I'll have a chocolate, Haggio ka chocolate ice cream. So you know what he did? He bought Ideal का vanilla ice cream. I said, why did you do this? You know my choices. मैंने तुम्हें 3 बार बोला ना. So he is that way. He bought completely different brand and he said the shops were closed. I said, this is the most popular brand. यहाँ कहीं पर भी मिल जाएगा. तेरा डाउन चल के जाओ तो नेक्स्ट शॉप में मुझे तुम्हारा ये ब्रांड मिल जाएगा. I said,
प्रैक्टिकली डिसअपॉइंटेड. तो उसकी जो माँ थी, शी वॉज हैंडलिंग द एंटायर किचन. उसका मेन्यू था, उसने फटाफट सम चिकन करी और सम स्टार्टर्स वगैरह अच्छा कुछ बनाया था वो आंटी ने, फर्स्ट क्लास. शी इज़ हैंडलिंग द एंटायर हाउस होल्ड. Then she'll make special breakfast for her son. Some millets का डोसा एंड ऐसा. ये कौन खाता है, ये तो बोरिंग डिश है. तो she had made some dosa which she said that's for my son. I said इसमें इतना सॉल्ट है ना, कुछ इतना बेस वाला बोरिंग है. She said that's for my son, he's got diabetes and he's on diet. ये रिच पीपल ऐसे मैड होते हैं. And he's in travel business, so he is connected with the airport. मतलब he knows airport authorities. अगर लेट होता है या डिले हो, if you have to get in and get out ना, उसको कॉल करने का, he will get it done. Yeah, he is connected to all the police authorities, army, navy. He knows all the people because he's in travel business. So he had told me, if you're coming down to Mangalore, always give me a call. If you need any help, ट्रैवल करना है, कुछ करना है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. या इज़ कनेक्टेड टू ऑल दोज पीपल. इनफैक्ट उसके घर में कुछ आर्मी के लोग रेंटल में रह रहे थे. घर कितना आर्टिस्टिक था, हर चीज़ आर्टिस्टिक, हर चीज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल. एक घर मैंने ऐसे देखे ना, मैं होश उड़ गए कि, और रहते कितने हैं, 2 लोग ऐसे. उनके बच्चे पूरे अब्रॉड होते हैं अगर वो बड़े होते हैं तो, या शादी हो चुकी है. मतलब क्या मतलब बनता है इतने बड़े से घर में रहने का. फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए एक नौकर, साफ सफाई के लिए एक नौकर, फिर इनके एनिमल्स होते हैं. नौकर तो चाहिए ना, दे विल नॉट बी गोइंग डाउन एंड डूइंग थिंग्स. तो आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल कि हाउ स्टूपिड आई वॉज. तो डोंट फील बैड. आई वॉन्ट टू टेल फीमेल्स कि डोंट फील बैड आफ्टर ब्रेकअप. तुम लोग को ऐसा लगा कि तुम्हारा एक्स वापस आना चाहिए. मैं भी ऐसे ही सोचती थी. 3-4 महीने तो मैं पूरी लाइक कभी आएगा वापस, क्योंकि वो मुझे होप्स देता था. आई होप यू अंडरस्टैंड कि खड़े रह के देखना या प्रिटेंड करना दैट ही इज स्टेयरिंग इनटू मी, या प्रिटेंड करना दैट ही इज मेकिंग मी जेलस, इग्नोरिंग मी, देन गिविंग मी सम अटेंशन. और वो पर्पसली करता था ये सारी चीज़ें. और ऐसे नहीं कि मैंने ब्रेकअप के बाद उसको मैसेजेस देखे, मैंने उसको खुले में मैसेजेस भी किए, उसको ईमेल्स भी भेजे मैंने. पूरा गाली गलोच वाले. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ये वो करके. ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बट उसकी एक हद होती है. नाउ सिंस वी नो ईच अनदर बिहेवियर, मतलब मुझे पता है कि ये एक स्टोन है कि मैं, इट्स लाइक बीटिंग द ओल्ड हॉपी हॉर्स टू डेथ. कुछ भी बोलो उसके ऊपर असर नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस एंड ईमेल्स. मुझे पता है, तो ठीक है, किसी हद तक मुझे पता है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट ना. स्टोन, एकदम स्टोन जैसा इंसान है. मतलब कोई पढ़ता है वो मैसेजेस, बट ही टेल मी आई हैव नॉट रेड योर सिंगल मैसेजेस, जबकि मुझे पता है दैट एवरी सिंगल मैसेज एंड ईमेल एवरीथिंग ही विल रीड करके. नो वंडर ही टेल्स मी दैट यू अब्यूज मी सो मच.
आई टेक इन अ लॉट ऑफ योर अब्यूज़, क्योंकि मैं मुंह पे बोलती हूँ ना, तुम्हारी तरह गले तो नहीं काटती हूँ। मैंने बोला अगर तू मुझे फिज़िकली एक थप्पड़ भी मारता ना, मैं वो झेल लेती, बट तू रिश्ता तो निभाता है, लेकिन तू वो भी नहीं कर रहा है ना, यू जस्ट बिट्रेइंग मी, धोखा दे रहा है, एंड देन यू आर सेइंग लाइज एंड दैट ऑल्सो वेरी पॉलिश तरीके से। रिश्ता निभाकर कमिटमेंट आई मीन निभाता, तो रिश्ता निभाता, तूने वो सारी चीज़ें नहीं की, तूने सिर्फ बातें की, बेकार सी बकवास सी बातें, होप्स दिए। तो ये मेरे साथ ही नहीं, सारे काफ़ी सारी लेडीज़ के साथ मैं ये बोलती हूँ कि इसके साथ कैसे कोप अप होना। तो इसलिए ये जो लेडीज़ होते हैं वो मैनिफेस्टेशन कोचेस के पास जाते हैं, उनके साथ बैठ के मैनिफेस्टेशन करते हैं ताकि वो एसपी जैसे स्पेसिफिक पर्सन वापस आ जाए। वाई डू यू नीड दैट प्रोसेस? इट शुड बी नेचुरल प्रोसेस। अगर तुम्हारा एक्स गया है देन ही शुड कम बैक ऑन हिज ओन। अपने से वो वापस आएगा तो कोई मीनिंग बनता है। इफ़ यू आर रनिंग बिहाइंड हिम, चेसिंग हिम, हैंकरिंग आफ्टर हिम विद ऑल दीज काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, कल को फिर से निकल जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें सक्सेस मिले क्या? वुडेंट आई वांट हिम, इफ़ आई वांटेड हिम बैक, वुडेंट आई गेट हिम बैक? उसकी चोचलेपने करके, उसको भी हाय हेलो करके, स्टूपिड हरकतें करके, मैं क्या मुझे उसके टाइमिंग्स और लोकेशन और ये सारी चीज़ें पता नहीं? इफ़ आई स्टॉक हिम और मैं उसको मस्का लगाती हूँ, प्रिटेंड दैट ही इज़ गेटिंग बैक टू मी, भाव खाता बट ही वुड गेट बैक टू मी, बट मुझे नहीं चाहिए उसकी खैरात, मुझे उसकी डोनेशन नहीं चाहिए। आई टोल्ड माई रिलेटिव्स येस्टरडे, आई डोंट नीड एनीबडीज फेवर्स एंड ब्रेड क्रम्स, अनवांटेड फेवर्स एंड ब्रेड क्रम्स। मैंने बोला पैसे नहीं है ना, पानी पी के अंदर घर पे मैं सो जाऊंगी अकेले, रह लूँगी अकेले, लेकिन रिलेटिव्स की शक्ल नहीं देखूंगी। ऐलान कर दिया है मैंने, नाउ दीज आर द बिगेस्ट गॉसिप, फुर्सत ही फुर्सत, गॉसिप मंगल्स रिटायर है तो फ़ोन घुमा घुमा के लोगों को अभी मेरे बारे में बताएंगे। मैंने बोला भाई ये आ गए स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, अभी ये मुझे अनवांटेड और ज़्यादा पब्लिसिटी देंगे, तो मैंने भी क्या तड़का मार मार के बराबर स्पीच दिया। मैंने बोला एक तो ये बहुत ईगोइस्टिक है, पैसों का इतना घमंड है इनको, इनके साथ ना ऐसी ही बातें करनी चाहिए, ऐसी उल्टी सुलटी बातें की मैंने इनके साथ। मैंने बोला होंगे ये बड़े ज़मींदार अपने लिए होंगे, मेरे लिए तो कोई काम के नहीं है ना। आई सेड माई फादर्स साइड इज़ completely useless and hopeless, and my side equally my mother's side's relatives. At least with them I had a vacation. तो अब ये जाके रायता फैलाएगी ये औरत। उनको काम नहीं रहता है। और ना मुझे एक इंट्यूजन आया, कोई ना कोई आएगा करके। ये मेरे ग्रीन बैंगल्स आर वेरी मच इन टॉक ऑफ द टाउन, सो दे आर कंसर्न कि कोई घर के अंदर तो ना हो, संडे का दिन है तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा ना। सो व्हाट शी सेड येस्टरडे वाज द फंक्शन, तो मतलब वो लड़की के साइड से आए तो ये लड़की की बुआ है, तो कितने सारे फंक्शंस होंगे। तो क्या कल ही आएगी क्या? सिर्फ डायरेक्टली शादी में आके लैंड होएगी? तो ये अमेरिका में नहीं है ना, डाउन साउथ में है, तो डेफिनेटली ये एक हफ्ते, एटलीस्ट एक हफ्ते पहले ये आए हैं। मतलब न्यू ईयर के टाइम न्यू ईयर यहाँ पे मनाया होगा, क्योंकि इसके सारे रिलेटिव्स यहाँ पे हैं। तो ये न्यू ईयर और उसका बेटा भी आया होगा, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मनाई है। और मेरे घर में कभी टपकी है 5 तारीख को, जबकि ये एक हफ्ते से यहीं पर रेंग रही है इसी प्लेस में। मतलब अनअवेज मतलब बोल के तो आना चाहिए, आई वुड हैव गॉन टू द सुपर मार्केट देन। फिर शांति तो वैसे ब्लैक लिस्ट में है, बदनाम, दरवाज़ा नहीं खोलती, फ़ोन नहीं अटेंड। मैंने बोला सीधा, मैंने रिलेटिव्स को बोल चुका, आई डोंट अटेंड कॉल्स, आई डोंट मेक कॉल्स, आई डोंट अटेंड कॉल्स, नाइदर मैसेजेस नॉर डू आई रिप्लाई, नाइदर डू आई मेक।
So how cunning these relatives are. Have you seen how cunning and harami they are? कितने बजे she landed? They landed up around 10:30 or 11 o'clock with some cookies. Stupid. अगर मैं घर पे नहीं होती तो टालती ना कि I'm not there at home करके. तो they wanted to catch me live. We didn't have your number. Lies. Her husband has a number. He used to message me once in a while. But I used to not reply to his messages because I was very upset with him also. इनके पास मेरा नंबर है. We didn't have your number. ये क्या सोचते, पैसे है तो पूरे सबको खरीद लेते हैं क्या इन लोग? They're so entitled. They're so obsessed about them, self-obsessed about themselves. पैसे है तो they're so narcissist ना, they think they can just get their way done. टपकाओ किसी के घर पे surprise visit, just so that you can find some inside information. नंबर 1 ये लेडी अभी जाके रायता फैलाएगी, ये इसके बारे में ऐसे बोल रही थी वैसे बोल रही थी. मैंने बोला मैं ओपनली कर्स करती हूँ जिसने भी मुझे सताया है. So they were here since 1 week और ये टपकते हैं 5th को, and that too Sunday afternoon. मुझे नहीं अच्छा लगा और इसके वजह से मेरा क्या ना, नॉट दैट मेरा मूड तो ऑफ ही हो गया. मैंने बोला बात यू नो शी इज़ एट माई डोर स्टेप एंड शी सेड डिड यू रिकग्नाइज मी. ये क्या बातें हुई? शी नॉनसेंस. और तभी आई वॉज मेकिंग दैट वीडियो, याद है ना? The way she was ringing the bell as though her ass was on fire. जैसे किसी की बेटी की शादी होती ना, इसका मुंह सूज जाता है क्योंकि इसकी बेटी 39-40 ईयर्स की ओल्ड की है और उसकी शादी नहीं हुई है. तो इनके बड़े दुखी हो जाते हैं भाई, किसी इसके रिश्तेदार की किसी की लड़की की शादी है, किसी की शादी है, इनका मुंह फूल जाता है, इनका मूड ऑफ है. अरे तेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती, मे बी शी हैज सम डिफरेंट प्रेफरेंसेस, हेवन नोज व्हाट इज़ द स्टोरी. लड़की को इसने कुछ सिखाया नहीं है, कुछ ऐसे लाड़ प्यार में रखा हुआ है और अभी वो अब्रॉड में सेटल डाउन हो गई है. उनको सब रेडीमेड मिल जाता है. हाँ, कौन से कंट्री का कौन सा सिटीजनशिप, सब आराम से मिल जाता है इनको. इसकी बेटी भी ऐसे कैसे किक बॉक्सिंग और ऐसे फालतू साइकिलिंग या कैसे सब कुछ करती रहती थी, बट फैट की फैट ही थी. शक्ल से भी ऐसे कुछ खास नहीं दिखती थी. मैंने बोला तेरी बेटी की हरकतें इतनी अजीब सी है, वो कोई आया गेस्ट तो मुंह बनाती है ना, वो किचन में हेल्प करती है, कितनी बड़ी घोड़ी हो गई है, शी बिहेव्स लाइक अ स्मॉल किड. तो नेचुरली अभी आजकल की लड़कियां वैसी है ना, फिर वो कमाती है, फिर इनके माँ बाप भी बच्चे की तरह इसके साथ बातें कर रहे थे. पता है इसकी लड़की के साथ, शी इज़ इन हर 20s and 30s और जैसे छोटा बच्चा है ना वैसे बातें कर रहे थे. What will you have money? What will you have for dinner? बहरे बहनचो, she's 27-28 years old. She can go and make her own meals. Mommy, I'll have pizza today. This is how they speak, these ladies in 20s, late 20s. Yeah, she was 30 years old. Yeah. बाहर का खाना, तली हुई चीज़ें लेके बैठ जाना, वो चबाते रहना, 24 घंटे खाना, रेस्टोरेंट जाना, घूमना फिरना. फिर इसके माँ बाप भी इनकरेज करते हैं, आए दिन बाहर जाके रेस्टोरेंट का खाना, फिर टीवी देखना, मूवीज़ ऐसे टीवी देख के खाते रहना. मैंने अपनी आंखों से देखा. और बदतमीज़ी करना मतलब ऐसे मुंह बनाते रहना. जैसे दे आर बोर्ड अबाउट एवरीबडी.
शादी की उम्र की लड़कियां और इस तरह की हरकतें, इनको इनके मायके में देखेंगे ना तो कोई शादी ही नहीं करेगा सीरियसली। कहीं इनके पैसे, डेजिग्नेशन और सैलरी देख के कोई शादी कर लेगा, बट व्हेन यू हैव टू लिव विद देम अंडर वन रूफ ना, तो नानी याद आ जाएगी। ये मैं अपने खुद के रिलेटिव्स की भी बातें कर रही हूँ कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं उनकी लड़कियाँ। एक एक तो ऐसे एटीट्यूड मारती है कि बॉलीवुड की नेपो किड्स है, बिचेस। पहले तो तुम लोग चौल में रहते हो और एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं, और जो बिल्डिंग में रहते थे वो तो ऐसे करते हैं पता नहीं क्या। आजकल डाउन साउथ में क्या होता है ना, एक लड़का एक लड़की होती है, एक लड़का एक, तो वो बच्चे इतने बिगड़ैल रहते हैं ना, इतने नास्टी रहते हैं, मैं क्या बताऊँ। बिकॉज नाउ डेज पीपल हैव ओनली वन और टू चिल्ड्रन, वन चाइल्ड। ये बड़ी शादी उम्र के लायक होगी तो भी इनके माँ बाप इनके साथ छोटे बच्चे की तरह बात करते हैं। वो देख के तो मेरा सर खप गया। गृहस्थी संभालनी है तुम लोगों को। इस तरह की वाहियात हरकतें देख के मैं खुद ही बोलूँगी भाई तो शादी ही मत कर। शादी मैं लड़कों को भी बोलूँगी, मैंने इससे सी दोस बॉयज़ ऑल्सो ना, मैं लड़की की बात ही नहीं कर रही, लड़कों के साथ भी ऐसे बच्चों जैसे हरकतें, वो लड़के भी बच्चे जैसे बिहेव करेंगे। दे थर्ट लेट 20s अर्ली 30s, इसके लिए हम लड़की देख रहे हैं। मैंने बोला सत्यानाश, की ज़िंदगी ख़राब करनी है क्या। मेरी ये एल्डरली कज़न्स के कुछ बच्चे, जब मैं उनको देखती हूँ लड़कों को, मैंने बोला सत्यानाश, इनकी शादी क्या करेंगे, ये इतने मम्माज बॉय है, इतने छोटे बच्चे चाइल्डिश बिहेव करते, दे शुड नॉट बी गेटिंग मैरिड। ये ऐसे ही ठीक है अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए। मैं लेडीज़ को इसलिए बोलती हूँ, डोंट फील गिल्टी, बट डोंट रन आफ्टर टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, मैनिफेस्टेशन कोच टू गेट योर एक्स बैक। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ। अगर तुम लोग कुछ हार्मलेस स्पेल्स करते हो, हार्मलेस तो बोल नहीं सकती हूँ, यूट्यूब पे देख के कुछ तुमने हाँ ये 1 2 3 लिखा, हाथ पे कुछ लिखा, मैं भी ऐसे करती थी 1 1 ऐसे कुछ नंबर्स, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, ऐसे सब मेंटल पना मैंने भी किया है। बट मैंने सोचा मैं कितनी एड़ी हूँ, ये करने से क्या वापस आ जाएगा। मुझे पता है वो कैसे वापस आएगा, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा भाव देती, थोड़ा सा उसको फॉलो अप करती, वो वापस आता। लेकिन मैंने बोला इस बार मैं मेहनत नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं उसके पीछे दौड़ूंगी नहीं, मैं मर जाऊँगी। मतलब मैं तरसूँगी उसके लिए, लेकिन उसके पीछे पीछे नहीं भागूँगी। मैं नहीं गिड़गिड़ाऊँगी उसके सामने। उसको वापस आना है, उसको रिश्ता रखना है, वो खुद मेहनत करेगा, वरना इट्स ओके, मैं लेट गो करने के लिए तैयार हूँ। जबकि आई लव्ड हिम सो मच मोर। मैंने बोला जैसे भगवान की इच्छा नहीं है ज़िंदगी में, नहीं है। वैसे भी उसने मुझे कुछ, ही डिडंट हैज़ नेवर केप्ट मी हैप्पी। उसने मुझे कभी खुश नहीं रखा है। ये तो मेरा प्यार ही था जिसके वजह से मैंने ये रिश्ते को निभाया, और उसको खुद को भी ये चीज़ पता है। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम द बैड वन। मैंने बोला ये फॉक्स की तरह क्यों बात करता है, इतना फेक, सो फेक ही इज़। और मेरा दिल भी बोलता था कि ये बहुत फेक है शांति, इसको सिर्फ स्टेटस से मतलब है, इसको सिर्फ डेजिग्नेशन से मतलब है, इसको सिर्फ मटेरियल पोजीशन से मतलब है, इसको तुम्हारे प्यार से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ एडमिरेशन चाहिए, इसको सिर्फ एक फ़ैन गर्ल चाहिए। My bad. Oh, I missed it. I'm so busy. How he used to make plans for dates and cancel last moment. Last moment पे वो cancel करता था. Oh, I'm so what busy. I have meetings. I'm in a meeting. जबकि उसकी ऑफिस यहीं पे है।
फिर ऐसे मूड ऑफ होता था, पता है यार। कैसे ही विल गिव द होप, अरे आज तो हमें बाहर जाना है ना, व्हाट विल यू ईट, कम ऑन टेल मी, लेट्स डिसाइड, यू डिसाइड, ओके कहाँ जाना है, क्या, वेयर डू यू वांट टू गो, ओके जहाँ पार्किंग मिलती है वहाँ पे जाएंगे, यू नो माई कार ना, आई कैन नॉट बी, आई डोंट हैव द पेशेंस टू कीप ड्राइविंग इन द इवनिंग, या विल गो हियर, यू, अच्छा इज इट, दिस इज ओके, यू डिसाइड, यू व्हाट यू वांट टू ईट, आई विल, इट्स ऑल अप टू यू। ऐसे बोल बोल के गोली देता था वो मुझे, एंड एंड मोमेंट पे कैंसिल। नहीं नहीं, टुडे आई वांट टू सेलिब्रेट, टुडे टुडे आई विल बी विथ यू। जब तुम्हें रिश्ता रखना ही नहीं था तो ये सब ढोंगीपना किया क्यों? कमिटमेंट की बातें नहीं, दिस टाइम इट इज़ वर्किंग आउट, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, कौन सी वाली रिंग चाहिए तुम्हें, थिंक अबाउट इट। अच्छा कौन से फ्लावर्स लेके आऊँ इवनिंग में? ना फ्लावर आता था ना वो आता था। सीरियसली, लाइक आई एम टेलिंग यू, अभी मैं पीछे देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। सो इट्स ओके, जब तक अगर वो एक्स वापस नहीं आता है तो लेट हिम गो, जाने दो उसको। तुम अपने ईगो के लिए ये करना कि वो वापस आ जाए, मत करो ये सारी चीज़ें। औरतें करती है ये सारी चीज़ें, मन्नतें करना, पागल की तरह उसके पीछे दौड़ना, बंद करो ये सारी। उसको आना है वो वापस आएगा, नहीं आना है मीन्स या तो तुम उसके टाइप के नहीं हो या बस नहीं है तुम्हारी किस्मत में, और अच्छा ही है। क्या करूँ इस तरह के इंसान का जो एक शोपीस की तरह है, कहने के लिए एक रिलेशनशिप, उसमें से मुझे 2 पैसे का सुख नहीं मिल रहा है। एटीट्यूड अलग से। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बस अभी बहुत हो गया। अभी अगर वो मुझे कहीं दिखता भी है तो कोई फीलिंग नहीं आती है, वो ज़ीरो फीलिंग है। पहले कुछ तो फीलिंग होती थी, कुछ नहीं है। मुझे बहुत टाइम लगा इस ब्रेकअप से संभलने को, बिकॉज एवरीथिंग वॉज हैपनिंग टुगेदर। अभी मैं, आई कैन से आई एम कम्प्लीटली फाइन। उसका भाई एक नदर कमीना इंसान है जो इतना एटीट्यूड मारता रहता है। दोनों को मैं इक्वली इग्नोर करती हूँ, मैं केयर ही नहीं करती हूँ दोनों को। उसका भाई भी ऐसे करता रहता है, ऐसे हाय हेलो नहीं निकलेगी, सिर्फ हाथ से वेव आउट करता है। दैट्स बिकॉज ही इज़ क्वाइट क्यूरियस कि हाँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे वो मर रहा है कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि ये दोनों राम लक्ष्मण की तरह एकदम क्लोज है।
तो मरे मरे जा रहा है टू आस्क मी सम क्वेश्चंस, और मैं भाव ही नहीं दे रही हूँ, मैं कैरी नहीं कर रही, तो होगा बड़ा अपने लिए होगा, बाकी नहीं। मैं नहीं क्या मैं बोलूँ यार, कि मैंने बोला कितनी अजीब सी खानदान है इसकी, सीरियसली अजीब ही है। जब तुम लेट गो करते हो ना किसी को, तो इनके चेहरे तुम बार बार देखते हो। जब तुम उनको तरसते हो देखने के लिए, तब वो दिखेंगे नहीं। जब तुम ना बॉदर नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे, तो आए दिन उनके थोबड़े तुम्हारे मुंह के सामने आ जाएंगे। सो आई वॉन्ट टू टेल माई लेडी व्यूअर्स कि ये राइट, ये ऐसा ही है। मैं भी एक नॉर्मल फीलिंग्स ही तुम लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें तुम लोग को अशेम्ड होने की कोई बात नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी अपनी ब्रेकअप की कहानी को ना या तो ग्लैमराइज करेगा या तो बड़ा चढ़ा के बताएगा। कपल्स के बीच में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। अभी मैंने अपना बताया कि क्या डिफरेंसेस है, स्टेटस का डिफरेंस है, थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है, काफ़ी सारा डिफरेंस है। थॉट प्रोसेसेस भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जिस तरह से दुनिया को देखता है, दुनिया का नज़रिया है, मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट है। तालमेल ना के बराबर ही है। जस्ट एक प्यार नाम की चीज़ उसको जोड़ के रखती है बस। मैं कितना रोई होंगी आफ्टर द ब्रेकअप। आई लिटरली क्राइड थिंकिंग कि मैंने कितना सारा टाइम वेस्ट किया, कितने सारे होप्स और ड्रीम्स वर क्रश्ड। क्या मुझे दिखाई या नहीं देता था, या समझ में नहीं आता था मैं क्या इतनी बेवकूफ़ हूँ, या समझ में आने पर भी मैं ये प्रिटेंड करती थी कि मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे ये रिश्ता निभाना था एट ऑल कॉस्ट। जैसे ये कोई डेडलाइन है, ये कोई टारगेट है जो मुझे पूरा करना है। सो लेडीज़ ऐसा मत करो। हमारे रिश्ते टारगेट्स या डेडलाइंस नहीं होते, गोल्स नहीं होते। इट शुड बी इन द स्टेट ऑफ नेचुरल फ्लो। कुछ है तो है, नहीं तो नहीं है। लेट गो करो। तकलीफ़ होती है, रो पीटो, कुछ भी करो। रोना है रो लो। तुम्हें लोगों से दूरी मेंटेन करनी है कुछ दिन से, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, वो कर लो। अपने ब्रेकअप को प्रोसेस कर लो और मूव ऑन। वो मूव ऑन मुझे खुद कितने महीने लगे, 4 महीने। एक्चुअली आई बिकेम लिटिल बेटर फ्रॉम नवंबर दिसंबर, और अभी तक आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। पहले क्या होता था ना, माई 1 foot वॉज इन द डोर फॉर फर्स्ट 4 months। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 foot इन द डोर। अक्टूबर तक मैं अपने आप को बहुत संभाल लिया था। नवंबर तक आई बिकेम मोर बेटर। दिसंबर में ऑल द मोर बेटर, कि उसकी थोबड़े को देख के मैंने बोला राइट नाउ स्टॉप हियर, आई नीड टू स्पीक टू यू। आई सेड योर ऑडेसिटी टू से टॉक टू मी लाइक दैट। मैं उसको भाषण देने वाली थी, तो उसने गाड़ी में बैठ कर वो छूमंतर हो गया। उसने मेरी शक्ल देखी, उसको पता था कि मैं अभी, मैंने बोला हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये सारी चीज़ें बताया बोलने की। इज़ लाइक आई एम कमिंग बैक। हाँ, आई एम कमिंग बैक। गाड़ी में बैठ के उसने सोचा मैं ज़बरदस्ती करूँगी कि मैं गाड़ी में बैठूँगी। मैंने बोला ये सब बचकानी हरकतें मुझे करनी नहीं है। एंड ही लुक्ड वेरी रॉटन दैट डे, एंड आई वॉज लुकिंग सो ग्लैमरस एंड सो ब्यूटिफुल, और मुझे इतना अटेंशन मिल रहा था। देख के हैरान हो गया कि मैं इतनी अमेजिंग लग रही हूँ। आफ्टर दैट इंसिडेंट, फिर वो क्या करने लगा पता है, ही वॉज फोल्डिंग हिज बाइसेप्स टू शो दैट ही इज़ जिम में जाके उसने अपनी इतनी अच्छी खासी बॉडी बना ली है।
सीरियसली लाइक फिर अभी इट टुक मी सो मच ऑफ टाइम। मैं उसके मुंह पे सुनाने वाली इतनी औकात क्या है, इतनी हैसियत क्या है दैट यू ओपनिंग योर माउथ एंड इतनी बातें कर रहे हो तुम। होगा कहीं तोप तू, यू नो लिटरली ही न्यू दैट आई वुड स्टार्ट माई भाषण, जस्ट सैट इन हिज कार एंड डिसअपियर्ड। मे बी ही वॉन्टेड मी टू से आई एम ऑल्सो कमिंग, मुझे तुमसे बातें, मैं क्यों करूँ ये सारी चोचलेपना उसके साथ। भाई सुपरस्टार तो है नहीं। दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग कि फॉरगेट इट, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। मैं मेरी गृहस्थी इसके साथ बसती, या मैं इसके साथ इस मेरे बच्चे होते तो मैं कैसे कंडीशन में होती इसके साथ। आई वुड बी ना, आई डोंट नो विच कंडीशन, क्योंकि इसकी जो ऐसी अजीब सी हरकतें हैं ना, फॉर्मेलिटी के रीज़न से मैं शादी मेरे मैं मिसिस सो एंड सो बनती, लेकिन उसमें एक दिन का हैप्पीनेस भी मुझे नहीं मिलता, एक दिन का सुहागन का सुख भी नहीं मिलता। बस सो एंड सो की डेजिग्नेशन, इतनी बड़ी डेजिग्नेशन, इतना बड़ा पावर कपल, ये नॉनसेंस वाली क्रैपी वाली सोशल मीडिया पे पोस्ट, इसको बहुत चूल मची रहती है इसको पोस्ट करने की, चीज़ें पोस्ट करने की। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था, आई एम नॉट पोस्टिंग माई फोटोग्राफ्स एनीवेयर। नहीं मतलब इसका क्या है ना कि ये कहीं पर भी इसका शो ऑफ करने का तरीका रहता है, पार्टिंग हियर, डूइंग दिस, टूरिंग हियर, बॉट दिस बॉट दैट। चाहे वो तुम्हारा पति, बच्चों के पति क्यों ना, अगर वो तुम्हें छोड़ के चला गया हो, लीव इट अप टू गॉड, लीव इट अप टू गॉड कि भाई अभी ये तुम्हारे तो जिनके बच्चे मैं समझ सकती हूँ, लीव इट अप टू गॉड। गिड़गिड़ाना बंद कर दो, गिड़गिड़ाना बंद कर दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो मैं गिड़गिड़ाती थी क्या मैंने कुछ कम मिन्नतें नहीं की उसके साथ। उसने ऐसे किया जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अब मैं जब ग्लैमरस बन गई हूँ, हायरार्की में मैं हायर लेवल पे आ चुकी हूँ, तो अभी मेरी थोड़ी बहुत वैल्यू है, थोड़ी बहुत, ठीक है, अभी शी समथिंग। हाँ, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैव फन। मैं शायद आज सब्ज़ी बनाऊंगी धीरे धीरे। बाय।